Good evening. Good evening, everyone. Am I audible? Am I audible? Yes? Okay, am I audible? Okay, so today we are going to move. We have completed our business law. Okay, now we are moving to the business communication. Okay, so today we are going to start this business communication. अब ये होता क्या है business communication? So from this chapter business communication 20 marks will come. Okay, तो बड़ा सा है marks 20 marks. Okay, so you have to understand. If you'll understand, you will be able to answer very nicely. Okay, now what do you mean by business communication? Here you see what is called communication. Communication derived from the Latin word communicare. Okay, it has been derived from the Latin word communicare. Communicare means to share. Okay, to share. Fine. Now what is the meaning of communication? Communication is the process of transferring, sharing, exchanging or transmitting ideas, facts, feelings, data, information and experience from one entity to others through a medium. You have to know first this thing. देखो ये याद कर लेना, ठीक है? Now communication means first one T stands for transmitting, okay? E stands for exchanging, S stands for sharing, T stands for transferring. Okay, हो गया टेस्ट? हो गया? Transmitting, exchanging, sharing, transferring. ठीक है? If क्या अभी ये सब क्या क्या करते हैं, किसको करते हैं, किसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, किसको शेयर कर रहे हैं, कौन सा चीज को शेयर करते हैं? Ideas. I stands for ideas, F stands for feelings, another F stands for facts. Okay, then E stands for experience. Okay, I stands for information and D stands for datas. Okay, from one entity to another, जैसे from one person to another person, from one field to another field, from government to another, from government to people, or from one organization to another organization. These are called from one entity to another entity. Okay, through a medium. Now what is called medium? Through a medium means suppose जैसे फोन हो गया आपका एक मीडियम, ठीक है? व्हाट्सएप हो गया, ठीक है? फिर फैक्स हो गया, इंटरनेट हो गया, या दिस वन ईमेल हो गया, ओके? लेटर हो गया. अंडरस्टूड नाउ? इज इट क्लियर? व्हाट इज द पर्पस? टू शेयर, लिसन एंड अंडरस्टैंड. टू शेयर, लिसन, सुनना, एंड अंडरस्टैंड द मैसेज बीइंग एक्सचेंज्ड बाय द पार्टीज इन्वॉल्व. ये देखो कम्युनिकेशन का जो वर्ड है ना, ये आता है जनरली कि ये चीज तुम ये याद रखना कि शेयरिंग है या नहीं. इसको याद रखना, टेस्ट इफ ईद, इसको लिख लो, प्लीज राइट इट डाउन. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेस्ट इफ ईद, यू विल नेवर फॉरगेट. ठीक है? ओके, फाइन. इज इट क्लियर?
नेक्स्ट, नाउ meaning sharing or exchanging information between people within and outside the organization. Within मतलब organization के अंदर, outside organization के बाहर, ठीक है, in order to achieve organizational goals. ठीक है, एक organization में रहने के लिए तुमको वो अचीवमेंट कैसा होना पड़ेगा, जो तुम कम्युनिकेट कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और जो तुम बाहर कम्युनिकेशन कर रहे हो पीपल के साथ, वो तुम्हारा क्या होना पड़ेगा, वो तुम्हारा एप्रोप्रिएट शेयरिंग होना पड़ेगा, एक्सचेंजिंग होना पड़ेगा बिटवीन द पीपल विदिन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नाउ इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन विदिन ऑर्गेनाइजेशन, स्टेक होल्डर्स एक्सेट्रा. इंटर और इंट्रा डिपार्टमेंटल मतलब, इंटर मतलब डिपार्टमेंटल के अंदर, ठीक है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, जैसे समझ में आया, उसके बीच में जो शेयरिंग हो रहा है, एक्सचेंजिंग हो रहा है, वो एक ही डिपार्टमेंट में. इंट्रा डिपार्टमेंटल जैसे प्रोडक्शन एक डिपार्टमेंट हुआ, मटेरियल्स एक अलग डिपार्टमेंट हुआ, तो दो डिपार्टमेंट के बीच में जो शेयरिंग हो रहा है दैट इज कॉल्ड इंट्रा. ओके, इज इट क्लियर? No entity can function in the absence of communication. कोई भी आदमी फंक्शन कर सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर सकता है, विदाउट कम्युनिकेशन नहीं होगा, इम्पॉसिबल. ठीक है. नाउ इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेज करना होना. मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, एक बिजनेस कम्युनिकेशन किस लिए चाहिए, ताकि वो मैनेज कर सके, एफिशिएंट हो मैनेज करने के लिए. बिल्डिंग अ डेडिकेटेड एंड लॉयल एम्प्लॉय बेस, एम्प्लॉयज जो है उसको बिल्ड कर सके, उसमें लॉयल्टी ला सके, उसमें डेडिकेशन ला सके काम के लिए. ओके, देन इफेक्टिव लीडरशिप, लीडरशिप इफेक्टिव हो. म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ये सब समझ में आ रहा है ना, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. बेटर डिसीजन मेकिंग विथ इन्फॉर्म जजमेंट. ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है उसको मैनेज करना आना चाहिए. मैनेजरियल फंक्शंस, improving customer service. ठीक है. ओके, नेक्स्ट, uses of business communication. What are the uses of business communication? Group discussion, speeches and debates, presentations. business communication का use क्या है, ताकि ग्रुप डिस्कशन, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप डिस्कशन होता है ना, मीटिंग होता है ना, तो उस पर आप पार्टिसिपेट कर सको. अगर आपको पता चलेगा कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, इफ यू स्टडी अबाउट द बिजनेस कम्युनिकेशन यू विल बी एबल टू डू ग्रुप डिस्कशन, यू विल बी एबल टू गिव स्पीचेस, you will be able to attend the debates. Okay, you can perform very well in the debates. And presentations, you can prepare any kind of presentations. Okay. Marketing, what is marketing? A process of creating, communicating, delivering, exchanging products and services to the customers, clients and society. समझ में आ गया? मार्केटिंग क्या करना है तो पता है ना तुम्हें. प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, क्रिएट करना, कम्युनिकेटिंग, एक दूसरे को कम्युनिकेट करना, क्लाइंट के साथ आप कम्युनिकेशन होना पड़ेगा अच्छा सा. डिलीवर करना, कैसे डिलीवर करना है आपको, मतलब प्रोडक्ट्स आपको वो आपको अच्छा से समझाना पड़ेगा. एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आपको आना पड़ेगा कि आपको किस तरह से एक्सचेंज करना है प्रोडक्ट्स को, किस तरह से कस्टमर को सर्विस देना है. You should know it. Okay, this is called the marketing. Okay. Communication is the key through which marketers can spread the word about the products of their business to customers. देखो, कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो आप मार्केटिंग नहीं कर सकोगे. जब आप एक दुकान में जाते हो कुछ खरीदने के लिए, तब तो आपको वो दुकानदार, जो शॉपकीपर है, जो आपका सेलर है, वो तो आपको अच्छा से दिखाएगा ना, मार्केटिंग करेगा ना, देखो मेरा प्रोडक्ट ये है, इसमें ये है, वो है, आपको ये अच्छा लगेगा, ये मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन आप खरीदो तब बहुत अच्छा होगा, इसका डिस्प्ले अच्छा है. तो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, एक्सचेंजिंग द आइडियाज़ अच्छे से होना पड़ेगा, शेयरिंग द व्यूज़, है ना, क्लाइंट के साथ
आपका सर्विस, अच्छा सर्विस देना पड़ेगा, आपको बोलेगा कि अच्छा बैठिए आप, थोड़ा आप चाय लीजिए, है ना, ये सब होना पड़ेगा मार्केटिंग का, ठीक है। Now, features of effective communication. What should be the feature of effective communication? एक effective communication के लिए क्या feature होना चाहिए? Good listening skill. आप कोई भी आदमी, याद रखना ये, जैसे आप दो आदमी बात कर रहे हो, ठीक है, जब एक आदमी बोल रहा है तो उसका बात सुनो पहले, उसके बीच में आप अगर रोक के, टोक के, बीच में अगर आप बात बोलते हो, देन यू आर नॉट अ गुड इफेक्टिव कम्युनिकेटर, ठीक है। आपका ये गुड लिसनिंग स्किल होना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, जो आदमी अच्छा से सुनते हैं वही अच्छा से बोलते हैं, ठीक है। ओपन माइंडेड, आपका ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। बीइंग अटेंटिव, अटेंशन आपका पूरा देना पड़ेगा, कुछ भी आप सुन रहे हो तो उसको अटेंटिवली सुनना पड़ेगा, कुछ लिख रहे हो तो अटेंटिवली वो लिखना पड़ेगा आपको, जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ, सो यू हैव टू लिसन प्रॉपरली, you have to write it properly what ma'am is teaching, you have to note it down properly, ठीक है। participating, you have to participate properly, participation मतलब जैसे कोई भी ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो उस पर आपका इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होना पड़ेगा, ठीक है। 8 C's of effective communication, this is important, ये आता है, ये देख लेना। 8 C's क्या है? फर्स्ट है क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब क्या है? क्लियर। आप जैसे कोई भी चीज कम्युनिकेट कर रहे हो, वो चीज लाइन जो है वो दैट शुड बी क्लियर, ओके, वो क्लियर होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ये मैं ऐसा आधा आधा आधी नहीं होना, वो क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है। आप जो बोलना चाहते हो दैट शुड बी क्लियर, पीपल शुड अंडरस्टैंड what do you want to say, it should be clear, okay। कंसाइसनेस, कंसाइसनेस मतलब शॉर्ट, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, ठीक है। ऐसा नहीं है जो तो मन किया बोलते जा रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे अभी अगर मैं कम्युनिकेशन तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कम्युनिकेशन के ऊपर अगर मैं जो तो उधर उधर से तुम्हें बताऊं तो तुम लोग बोर हो जाओगे ना, आई हैव टू एक्सप्लेन यू टू द पॉइंट, तो कंसाइज होना पड़ेगा वो, ठीक है, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, ठीक है। courteous, courteous का मतलब politeness, ठीक है, you should be polite while communicating with others, you should be polite, ठीक है। correctness, correctness मतलब grammatically correct होना पड़ेगा, ठीक है। completeness, एक लाइन जो है वो complete होना पड़ेगा, वो incomplete नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंक्रीटनेस, कंक्रीटनेस क्या हुआ? यस, कंक्रीटनेस मतलब स्पेसिफिक, आपका वो स्पेसिफिक होना पड़ेगा, समझ में आया? वो ऐसा नहीं है जो तो चीज होने से नहीं होगा, वो स्पेसिफिक होना पड़ेगा, ठीक है, एब्सोल्यूट होना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंक्रीटनेस। कंसिडरेशन, इट शुड बी कंसिडरेबल, ओके। एंड कोहेरेंस मीन्स लॉजिकल, लॉजिक देके आपको बोलना है, कुछ भी लिखना है उसमें लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। वही ये 8 चीज, these 8 C's should be there in your effective communication. First one is clarity. Clarity means clear, ठीक है। Concise means to the point, और शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट ऐसा नहीं, शॉर्ट मतलब टू द पॉइंट। courteous means polite, correctness means grammatically correct, completeness means complete, okay,
Concreteness means specific. पूजा ये लिख लो. Consideration means considerable. Coherence means logical. Fine? Is it clear? These points should be there in your effective communication. If there will be missing any point, then means your effective communication is not there. These 8 C's should be there in your effective communication. Okay? Fine? Any doubt? क्या दिया है? देखना था मुझे बोलना, बट दिस इज करेक्ट है, ये देखना. लॉजिकल. ठीक है. नाउ हियर यू सी, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये आता है. ठीक है. प्रोसेस और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये देखो सेंडर हो गया. जैसे सपोज ए इज ए सेंडर. ठीक है. उसके दिमाग में एक आइडिया आया. ठीक है. वो सोच रहा है, तो वो सोच के वो यहाँ पे एनकोड किया. एनकोड करना मतलब खुलना, उसको एक्सप्रेस करना. कोई भी मैसेज को जब आप एक्सप्रेस करते हो सोच के, तो उसको बोलते हैं एनकोड करना. ठीक है. अब वो जो लिख रहा है, जो एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग. और वो बनता किस में है? मैसेज बन जाता है. ठीक है. वो जो उसका आइडियाज है, थॉट्स है, वो थॉट्स को एनकोड करता है. लिख लिख के कभी आप बता भी सकते हो, बोल के भी होता है. ठीक है. वो मैसेज हो गया. ठीक है. फिर मैसेज को जब कोई दूसरा खोलता है, जैसे रिसीवर आया. ठीक है. रिसीवर को क्या मिलता है? मैसेज मिलता है. मैसेज मिलने के बाद जैसे ही रिसीवर पढ़ता है, उसको खोलता है, देन इट इज कॉल्ड डिकोडिंग. समझ में आ गया? अब रिसीवर क्या करता है? फिर फीडबैक देता है, रिप्लाई देता है. जो रिप्लाई है, जो फीडबैक, वो रिप्लाई देना मतलब फीडबैक देना. ठीक है. और वो किस माध्यम से दे रहा है, किस चैनल के थ्रू से दे रहा है, या मीडियम के थ्रू से दे रहा है, दैट इज कॉल्ड योर चैनल और मीडियम. सपोज व्हाट्सएप थ्रू व्हाट्सएप दे रहा है, टेक्स्ट मैसेज कर रहा है, ना यूट्यूब में थ्रू कर रहा है, ना किस में कर रहा है. समझ में आया? इज इट क्लियर? ओके. एनी डाउट? ये मैंने तुमको एकदम इजी वे से मैंने समझा दिया. ठीक है. ऐसा नहीं होता है. देखो, जो यहाँ पे मैंने लिखा है डिकोडिंग, मैसेज को डिकोड मतलब मैसेज जाएगा जब रिसीवर के सामने, तो वो रिसीवर तो खोलेगा ना. वो खोलना मतलब जब ऐसे खोलता है, पढ़ता है, जब वो मतलब ये एक्सेप्ट करता है, तो तब मिलता डिकोडिंग. हाँ, वो ऐसा नहीं है. डिकोडिंग के बाद यहाँ पे है, लेकिन इसलिए मैंने दिया इसमें. ठीक है ना? हाँ. लेकिन जो ये है, इवन मैं तुम्हें बोल रही हूँ, जो सेंडर है वो एनकोड करता है, अपना थॉट्स को भेजता है, अपना थॉट्स को खोलता है. खोलने के बाद वो मैसेज बनता है. मैसेज को जब वो डिकोड करता है, जब भेजता है, वो जब रिसीवर उसको, मतलब एक्चुअली यहाँ पे बोला गया है कि डिकोड जो करता है वो कौन करता है?
रिसीवर, ये बोला गया है, ठीक है, समझ में आया? सेंडर इज सेंडिंग द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ, sender is sending the message, he is expressing his ideas, concepts, that is means encoding, okay, और वो मैसेज बनता है, वो मैसेज को जब खोला जाता है, कौन खोलता है उसको? रिसीवर। जब पढ़ता है दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग, और जब रिप्लाई देता है दैट इज कॉल्ड फीडबैक, ओके। एंड चैनल और मीडियम किस माध्यम से देता है, ओके, एनी डाउट? ठीक है, नाउ दिस वन, ये अच्छा से समझ लो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे मैं जो जो तुम्हें पॉइंट समझा रही हूँ, ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट, ओके, जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से है वही मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एसेंस ऑफ फीडबैक, ओके। फीडबैक 4 टाइप्स का फीडबैक है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड, नेगेटिव फीड फॉरवर्ड, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, और एक आता है वो नहीं दिया है, क्या है? एक बैलेंस्ड फीडबैक जो हर आदमी को देना चाहिए, ठीक है, बैलेंस्ड फीडबैक। अब समझो, ये पहले पॉजिटिव फीडबैक समझो। पॉजिटिव फीडबैक क्या है? अफर्मिंग कमेंट्स विथ रिगार्ड टू पास्ट बिहेवियर, ठीक है। जैसे जुगांता एक सिंगर, जुगांता एक मेरा स्टूडेंट है, तुम मेरा स्टूडेंट हो, तो तुमने जाके स्टेज में एक परफॉर्म किया है, एक डांस परफॉर्म किया है, ठीक है, एंड दैट डांस वाज वेरी एक्सीलेंट। तो तुम जब मेरे पास आए, मैम मेरा डांस कैसा था? आई हैव व्हाट आई सेड, मैंने बोला जुगांता यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, योर परफॉर्मेंस वाज एक्सीलेंट। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक, तुम्हारा पास्ट परफॉर्मेंस से अफर्मिंग कमेंट्स, ठीक है, अफर्मिंग कमेंट्स। पॉजिटिव मतलब अफर्मिंग, पॉजिटिव फीडबैक मतलब ये अफर्मिंग कमेंट्स, ये पॉजिटिव का मतलब अफर्मिंग, समझ में आया? फीडबैक मतलब पास्ट जो तुमने किया था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। अब नेगेटिव फीडबैक, इसमें अभी आया करेक्टिव कमेंट्स, इसमें आप क्या करोगे? पास्ट, जैसे एग्जाम्पल, जुगांता तुमने जो डांस किया था वो ऐसे तो अच्छा था, ऐसे अच्छा था नहीं बोलेंगे हम लोग, तुमको क्या देंगे? तुमको क्या बोलेंगे? नेगेटिव फीडबैक है वो। जुगांता तुमने जो डांस किया था एकदम अच्छा नहीं था, उसको तुम ठीक करो थोड़ा, जो तुमने डांस किया था वो थोड़ा और तुमको अच्छा से परफॉर्म करना है, वो थोड़ा स्टेज को कवर करना था, स्टेज को कवर नहीं किया, ऐसा नहीं है, स्टेज को कवर नहीं किया, पास्ट जो तुमने डांस किया था ना वो स्टेज तुम्हारा टोटल कवर नहीं हुआ, तुमने एक जगह ही डांस किया, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड, वो फ्यूचर में अफर्मिंग कमेंट्स विथ रिगार्ड टू फ्यूचर बिहेवियर। तुम जैसे पढ़ रहे हो, अगर एग्ज़ाम में तुम इस तरह से पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, तुम एग्ज़ाम में लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, इस तरह से पढ़ने से तुम एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है, समझ में आया? ओके, पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड, नेगेटिव फीड फॉरवर्ड, करेक्टिव कमेंट्स विथ रिगार्ड टू फ्यूचर बिहेवियर, इसमें बोलो। हाँ, तुम जिस तरह पढ़ रहे हो ऐसे करने से तुम लेकिन पास नहीं करोगे, ठीक है, फ्यूचर में आएगा, ठीक है, समझ में आया? फीड फॉरवर्ड, करेक्टिव, तुम थोड़ा अच्छा से पढ़ो और तब अच्छे मार्क्स आओगे, ये तुम्हारा फ्यूचर, लेकिन करेक्टिव मतलब तुमको तुमने जो डांस किया है
डांस जब तुम करोगे स्टेज में, उसमें थोड़ा स्टेज को कवर कर लेना, स्टेज को अच्छा से कवर कर लेना, करेक्टिव, स्टेज को अच्छा से कवर कर लेना, नहीं तो स्टेज कवर नहीं करने से तुम्हारा नहीं आएगा फ्यूचर में, जो फ्यूचर में थोड़ा नेगेटिव मतलब है ना तुम्हारा, समझा, करेक्टिव वे में। ओके, समझ में आ गया? डाउट डाउट है इसमें? अब बैलेंस्ड फीडबैक क्या होता है सुनो, ये शायद नहीं है तुम लोग के बुक में। बैलेंस्ड फीडबैक क्या है, जैसे तुमने पढ़ा तो था, अच्छा मार्क्स नहीं आया है, लेकिन और अगर अच्छा से पढ़ोगे, थोड़ा और एफर्ट दोगे तो लेकिन अच्छा मार्क्स आ जाएगा नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है? दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड। ओके, बात तुमने डांस परफॉर्म किया था, तुम्हारा अच्छा हुआ था, ओवरऑल तो अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन और थोड़ा एफर्ट देते तो तुम्हारा अच्छा होता, ठीक है? समझ में आ गया? कोई डाउट? दिस वन यू प्लीज राइट इट डाउन। ये मैंने जो तुमको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन दिया था, वो मैंने जस्ट ये चार्ट मैंने बनाया था, ठीक है? लेकिन जो रिसीवर है वो पहले आता है, रिसीवर आके ना तुमको डिकोड करता है ना, रिसीवर अगर पहले नहीं आएगा तो डिकोड कैसे करेगा, ठीक है? थोड़ा थोड़ा सा चाहिए, नहीं है, लॉन्ग है लेकिन तुमको इतना नहीं चाहिए, जो जो चाहिए वही मैं कराऊंगी। आज थोड़ा हो जाएगा मेन चीज़, और बाकी एक क्लास चाहिए मुझे। फिनिश्ड? हो गया? पूजा हो गया ना? करो। नेक्स्ट है communication process. There are two types of communication process.
First one is one-way communication process, another is two-way communication process. Okay, one-way communication जैसे टीवी देखना, वीडियो देखना, फिर म्यूजिक तुम्हारा सुनना, these are one way. सेंडर दे रहा है लेकिन रिसीवर से कुछ नहीं जा रहा है, समझ में आया? दिस इज अ लीनियर मॉडल. ये लीनियर क्या होता है? लीनियर मॉडल क्या होता है? जैसे ऐसे जा रहा है मैसेज, समझ में आया? इस तरह से जा रहा है, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, वन वे, एक तरफा जा रहा है, समझ में आया? ये इसको क्या बोलते हैं? लीनियर. और ये क्या है? टू वे कम्युनिकेशन. दिस इज अ साइक्लिक मॉडल. व्हाट इज कॉल्ड साइक्लिक मॉडल? घूम रहा है ना? समझ में आया? जैसे कम्युनिकेटिंग विथ एनी पर्सन, मैं जैसे बात कर रही हूँ, तुम लोग भी मुझे रेस्पॉन्स कर रहे हो, सो वी आर फॉलोइंग द टू वे कम्युनिकेशन, isn't it? We are following teaching जो प्रोसेस है, this is a two-way communication process. Okay, communicating with any person, interviews, these are the two ways communication. Now this is a linear model. Here the communication is one-sided, एक side. It begins when sender selects a message. Sender कौन है? Selects a message to deliver to the receiver. Sender कौन है? टेलीविजन जैसे sender है, समझ में आया? थ्रू टेलीविजन आ रहा है, टेलीविजन मतलब मीडियम है ना? वहां से सेंडर दे रहा है मैसेज और हम क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं. फॉलोड बाय द एनकोडिंग स्टेज. एनकोडिंग स्टेज यू हैव अंडरस्टूड? खुलना, खोल रहा है ना वो, जैसे वीडियो आया, वीडियो भेजा तो वीडियो को खोल के हम लोग वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो समझ में आ रहा है या नहीं हम लोग को? एंड ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर थ्रू मीडियम. ट्रांसमिट हो रहा है रिसीवर तक थ्रू अ मीडियम विच द रिसीवर डिकोड्स द मैसेज. इट्स अ मोनोलॉग, जिसको रिसीवर क्या करता है? डिकोड करता है, खोलता है. ये जो सेंडर है, सेंडर क्या कर रहा है? सिलेक्ट्स अ मैसेज और वो भेजता है. किसको भेजता है? रिसीवर को. और सेंडर भेजता है, एनकोड करके भेजता है ना? जो जैसे कोई टीवी का न्यूज़ है, आप देख रहे हो, तो वो जो भेज रहा है न्यूज़ चैनल से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से वो आ रहा है, थ्रू द न्यूज़ चैनल वी आर रिसीविंग द मैसेज, है ना? तो जब हमें मैसेज मिल रहा है तो वो जो सेंडर है उसका व्यूज, थॉट्स, आइडियाज भेज रहा है इन द फॉर्म ऑफ मैसेज. ओके, उसको एनकोडिंग करना. फिर हम लोग ने रिसीव कर लिया, रिसीव करके हम लोग उसको खोला, हम लोग ने देखा, हम लोग ने समझा. दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग. समझ में आया? बट वी आर नॉट सेंडिंग द फीडबैक. हम लोग उसके साथ फिर कम्युनिकेट नहीं कर रहे. सो दिस इज अ लीनियर प्रोसेस, लीनियर मॉडल, वन वे कम्युनिकेशन एंड अ मोनोलॉग. एक तरफा. मोनोलॉग मतलब एक तरफा. समझ में आया? इज इट क्लियर? ऑब्वियसली वन वे कम्युनिकेशन एग्जाम्पल दीज आर. ये आएगा तुम्हारा एग्जाम में कि टेलीविजन, वाचिंग टेलीविजन, वीडियो, लिसनिंग टू म्यूजिक, ये सब क्या है? हाँ, कम्युनिकेटिंग टू. तुम कैसे वन वे बोलो तो एग्जाम्पल दो. तुम रिसीव कर रहे हो, तुम अगर फीडबैक नहीं देते हो तब वो वन वे कम्युनिकेशन. लेकिन ऐसा टू पर्सन्स के साथ वो वन वे नहीं होता है, वो टू वे होता है. ठीक है, समझ में आया? वो नहीं बोल के नहीं रहेगा. उसको समझ में आ रहा है या नहीं? यू आर कम्युनिकेटिंग विथ मी ना. सो टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस. दिस इज अ साइक्लिक मॉडल, साइकिल. हियर द रिसीवर, ठीक है, रिसीवर गिव्स द सेंडर फीडबैक. यहाँ पे क्या होता है? फीडबैक देता है. जैसे तुम मुझे फीडबैक दे रहे हो, समझ में आ रहा है या नहीं? मैम ये नहीं समझाइए, फिर से आप समझाइए. दिस इज कॉल्ड द फीडबैक. ओके, and can also clarify his or her doubts or can share on the proposed topic of discussion. It's a dialogue by the nature. समझ में आया? Is it clear?
कम्युनिकेटिंग विथ एनी पर्सन, इंटरव्यूज एक्सेट्रा, ग्रुप डिस्कशन. ठीक है, समझ में आया? इज इट क्लियर? स्पीच इज अ, कैसे? वो जा रहा है लेकिन उसको तो समझ रहा है, डिकोड कर रहा है वो. ठीक है, ऐसा भी कोई आदमी थैंक यू तो बोल सकता है, वो तो थैंक यू भी बोलेगा. ठीक है, ये स्पेशली जो वन वे कम्युनिकेशन है वो स्पेशली क्या होता है, न्यू मतलब कोई आप मूवी देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, कोई गाना सुन रहे हो, ऑडियो विजुअल जो है ना वो सब, एक्चुअली दीज थिंग्स कम्स वन वे कम्युनिकेशन में. ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? ये इतना याद रखना, ये दे सकता है एग्जाम में, इन द एग्जाम, कि मोनोलॉग कौन सा है. वन वे कम्युनिकेशन क्या मोनोलॉग है या इट्स अ डायलॉग बाय नेचर. ठीक है, तब तुमको पता, मोनोलॉग मतलब एक तरफा, तो एक तरफा से कौन आ रहा है, वन वे कम्युनिकेशन. ठीक है, ये लेकिन टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा. और साइक्लिक, साइक्लिक कौन है, ये भी तुमको एग्जाम में दे सकता है कि साइक्लिक मॉडल कौन है, टू वे कम्युनिकेशन है या वन वे कम्युनिकेशन है. तो तुमको पता चलना चाहिए कि वन वे कम्युनिकेशन क्या है, ओनली लीनियर. लीनियर मैंने बोला ना, ऐसे जाएगा एक तरफा, ओके, वन साइडेड. ठीक है, और जो टू वे कम्युनिकेशन है दैट इज अ साइक्लिक. ठीक है, इतना याद रखना, दीज क्वेश्चंस विल कम, डेफिनेटली इट विल कम. ठीक है, अब ये जो है टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी. ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, इसमें मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी. इसमें एक चीज मैं तुम्हें बोल देती हूँ, 5.5 चैप्टर. ठीक है, ये क्या है, इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन. तुमको पता है इंटरनेट बेस्ड क्या होता है ना, थ्रू इंटरनेट कम्युनिकेशन होता है. ओके, इसमें इतना कुछ नहीं है, इतना तुमको ये नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट्स अभी जैसे ये हुआ तुम्हारा टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ये इतना तक हॉराइजॉन्टल, ये थोड़ा मैं दिखा के तुमको पढ़ाऊंगी, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी. ठीक है, और बाकी कुछ कुछ है, थोड़ा बहुत कुछ है, वो सब मैं दिखा दूंगी. नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ नहीं आएगा. ठीक है, ये सब कुछ नहीं आएगा, ये सब इतना कुछ नहीं आता है, ये सब तुमको पढ़ना नहीं है. ठीक है, मैं जो जो पढ़ाऊंगी वही पढ़ना इसमें. हाँ, खाली इतना बता देती हूँ तुम्हें. देखो ये वाला कम्युनिकेशन में रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, क्या रिलेशनशिप है पार्टीज के बीच में, और एक है मीडिया यूज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन. फर्स्ट वन इज रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, क्या है, एक फॉर्मल जो ऑफिशियल होता है ना, एक ऑफिस में जो होता है फॉर्मल रिलेशनशिप, वो आपको समझ में आ गया. फॉर्मल रिलेशनशिप, जैसे आपको फॉर्मली रहना है, जैसे आपका बॉस के साथ आपको फॉर्मली रहना पड़ेगा, है ना. ऑफिस के कॉलीग्स के साथ फॉर्मली रहना पड़ेगा. ऑफिशियल जो जो हुआ दैट शुड बी योर फॉर्मल रिलेशनशिप. ओके, और जो अनऑफिशियल है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ऑल दीज आर इनफॉर्मल. इतना समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट है मीडिया यूज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन. आप क्या मीडिया यूज कर रहे हो,
एक है रिटन, रिटन लिख के कम्युनिकेट कर रहे हो, या नहीं तो गेस्चरल। कैसे? ओके, अदरवाइज साइन, आपने देखा साइन लैंग्वेज यूज करते हैं कुछ कुछ, दैट इज ऑल्सो गेस्चरल। ओके, ठीक है, समझ में आया? हम लोग ऐसे, दीज आर गेस्चरल कम्युनिकेशन, बोले नहीं भाई, है ना? फाइन। ऑरल ये गेस्चरल में ही पड़ता है। वर्बल, वर्बल मतलब ऑरल, मतलब वर्बली मतलब आप, हाँ, वर्बली मतलब ये जो रिटन है, और एक है वर्बल, वो ऑरल है, मुंह से आप बात करके कर रहे हो, लिख के नहीं। और गेस्चरल मतलब आप बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हो, ठीक है, आपका गेस्चर से बोल रहे हैं, यू आर प्रेजेंटिंग। जैसे मैं टीचिंग कर रही हूँ तो मेरा गेस्चर पोस्चर से आपको समझ में आएगा, है ना, आपका बॉडी मूवमेंट से समझ में आएगा। ओके, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, ये मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। अपवर्ड जो है, जैसे जैसे आपका बॉस बॉस को, आपको नीचे का क्लर्क है, क्लर्क को कुछ कम्युनिकेट करना है, देन ही और शी इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द बॉस, तो वो किसके, जैसे अगर डाउनवर्ड आएगा तो उसके नीचे वाला आदमी से बात करेगा, अपवर्ड जाएगा तो ऊपर में, ऊपर का लेवल का बात करेगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया तुमको? डाउट नहीं है? और ये डायगोनल और हॉरिजॉन्टल, जैसे डिपार्टमेंटल में मैं ये दिखाऊंगी, ठीक है, अच्छा से, ठीक है। हियर आई एम एंडिंग अप द क्लास, टुडेज क्लास। ओके, थैंक यू सो मच। Only one class is left. In our next class, we will complete our course. Okay? Thank you. Thank you so much.